Hello everyone and a very good afternoon. I welcome you all to Pyramid Technoplast Limited's Q2 and H1 FY26 con call. Please note that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risk the company faces. We have on call today Mr. Bijay Kumar Agarwal, the Managing Director, and Mr. Jay Prakash Agarwal, CFO and the whole-time Director. So now, I would like to hand over the call to Jay sir to proceed with the opening remarks. Post that, we'll open the floor for Q&A. Thank you and over to you, sir. A very good afternoon, everyone. Thanks for joining. So it's a pleasure to be here today with you again and to walk you through how Q2 and H1 FY26 shaped up for Pyramid Technoplast. So this quarter has been significant, not just in terms of performance, but also in steady progress we have made towards building a scalable and future-ready business. From establishing a strong base in Gujarat to getting a new plant in Maharashtra, we have expanded capacity across all drum categories, marking the next chapter to our growth journey. A key milestone this quarter was the ramp-up of our Wada plant. The facility has commissioned in June, and we saw a strong operational momentum in Q2. With this major capex cycle is largely complete and now focus shift to capacity utilization. At Wada, IBC and SDP lines are fully operational, and MS Drum expansion is on track to get complete by December this year. So apart from this, we see capex of another 10 to 20 crore coming in FY27. So our major strength lie in backward integration, like what we are manufacturing in-house, like taps, lids, etc., which I think most of you are aware by now. Our fleet now happens to be 95. So we have strengthened our logistic backbone, enabling reliable on-time deliveries and stronger customer relationships. Talking about the capacity scope, as of Q2 FY25, production capacity stood at 62,050 metric ton per annum, which has now risen to 22% to 75,754 metric tons per annum, reflecting sustained growth momentum. Capacity utilization for the quarter stood at 66%. Slightly lower. Can you please mute yourself? Request the participants to please mute yourselves. It was around 66% the capacity utilization, slightly lower due to initial phase of operations at Wada plant. Coming to key business updates, we commissioned our plastic recycling plant on October 3rd and our solar plant in October 30th. While the benefits of these will soon reflect in our numbers, here is a quick snapshot of both. We have set up a new recycling unit this area is around 4,400 square meter of land in Bharuch with an investment of around 10 crore. The 5,000 metric ton annual capacity will meet our 10 to 12% of raw material requirement, cutting costs, reducing import dependency, and strengthening supply chain resilience, all with a quick 2 to 3 years payback period. In addition to our 6 mega plant solar setup in Gujarat, marks the first phase of 15 megawatt project across Gujarat and Maharashtra. Once fully online in next 3 to 4 weeks, it's expected to bring our power cost significantly. With 60 crore investment, around 4-year payback, it's a solid step towards cost efficiency and sustainability. Let me give you a quick check on the segmental performance now for quarter 2. So MS Drum volumes up by 14% year on year, revenue up by 7% year on year, with 90% of process automated. The SDP drum segment volume up 16% year on year, revenue up by 11% year on year basis, aided by ramp up across lines. IBC massive volume growth of 42% and 30% revenue growth year on year. Coming on to financial highlights. The revenue stood at 161 crore, up by 21% year on year,
for the quarter and 22% half year to 325 crore, driven by robust volume growth across all categories. Gross profit at 43 crore, up by 28% year-on-year, led by strong volumes, while H1 is stood at 87 crore, which is up by 28% again. The recycling plant is expected to reduce raw material cost by 10 to 12% annually, further boosting our margins. EBITDA up by 21% year-on-year to 12.6 crore. PAT up by 8% year-on-year to 6.2 crore, with margins stable at 8% and 4% respectively due to higher fixed costs during the ramp-up phase. The 6 megawatt solar power commissioned in October will start delivering cost benefits soon, with full capacity to get expected to complete by end of this month. In summary, with the expansion phase nearing completion, coupled with sustainability initiatives and higher utilization in established phase, we see a lot of operational efficiencies in our business going forward. Pyramid is well positioned to drive consistent growth and enhance profitability and create long-term value to all stakeholders. We are excited about the road ahead and now open to take your questions. Thanks. Thank you, sir. We'll begin with our Q&A session. I request all the participants to please raise their hands before asking the question. We'll wait for a minute and probably then we can begin with it. Okay, so first question we have from Dipesh Sancheti. Please go ahead, sir. Namaste, sir. Am I audible? Yes, you are. Okay. You guided. Firstly, what is the reason of इस बार का जो performance था? It was because of the mainly the fixed cost, or there was something else also? Because we had a good revenue growth, but the profit growth was not as ये expected. जो वाडा प्लांट जो चालू हुआ है उसमें जो फिक्स कॉस्ट चालू हो गए इलेक्ट्रिक के और लेबर के सैलरी पेमेंट वगैरह प्लांट रनिंग नहीं हुआ है और उनका कॉस्ट आया है इलेक्ट्रिक में करीब करीब देखेंगे 70 लाख रुपए से बढ़ा है लेबर में 83 लाख के आसपास बढ़ा है डिप्रेसिएशन 45 लाख से बढ़ा है उसके कारण इसलिए ये सब दिख रहे हैं Once the capacity utilization will start there, so it will definitely come down because ये initial 2 महीने ही हुआ है हमको चालू हुए सर. So by next quarter काम करने के लिए आदमी को तो रखना होगा ना उनको रखा है उनकी सैलरी है वो उसके कारण नहीं दो चीज. Okay. So सर कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब H2 में हो जाएगा? दीपेश जी. जी सर. आवाज आ रही है मेरी? Hello. Can you hear me? Dipesh, sir, you are audible. हेलो. Am I audible? Yeah, you are. Jay, can you hear sir, me? can you please Hello? check the network? I think Jay cannot hear me. Yeah, I can hear you now, sir. Okay, okay. इसमें mute हो गया. सर ये अभी ये पूछना सर H2 में हमारा कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा वाडा का? अभी हम लगता है हम 80% के आसपास यूज करने लग गए हैं. 83%. 80%. ओके. 8% जो है 80% यूज हो रहा है. ओके. सर आपने जो गाइड किया था पहले कि 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ वो तो परफेक्ट हो गया और 11 to 12% एबिटा मार्जिन. अब आगे जाते हुए इन FY 26-27 आप अपना गाइडेंस बढ़ाना चाहेंगे जो पहले 700 करोड़ का आपने गाइडेंस दिया था वो? नहीं वही रखा हुआ सर. नहीं मैं बोल रहा हूँ मतलब अभी H2 अगर बराबर हुआ तो गाइडेंस 700 का ज्यादा होगा कि 700 पे होगा? 700 के आसपास ही आएगा. सॉरी 700 के आसपास ही आएगा फिर. 700 के आसपास ही आएगा. बड़ा तो बोनस है. Okay. And can we expect marginal improvement also in Q3 and Q4? 2-3 कारण है. महाराष्ट्र में भी मेरे 5 दिन के अंदर पावर कॉस्ट कम हो जाएगा. एक सोलर चालू हो रहा है प्लस जो हम लेबर पे पेमेंट कर रहे हैं बिना सेल का कर रहे हैं अभी सब सेल चालू हो गई है.
उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके। एंड जो रिसाइकलिंग प्लांट है सर, वो भी फुल कैपेसिटी हो गया है उसका? इंस्टॉल बराबर हो गई है। जीपीसीपी वालों का विजिट होना है दो इस वीक में किसी भी दिन, उसके बाद हम उसको रनिंग कर सकते हैं। पहले जीपीसीपी को दिखाना पड़ता है, ट्रायल वगैरह सब ओके हो गया है, जीपीसीपी वाले विजिट करेंगे, उसके बाद हम उसको चालू कर लेंगे। We are already in discussion with all customers. So we are prepared from our side. So it is just matter of some government certification, and then we can start collecting waste from the market. एंड व्हेन डू यू एक्सपेक्ट दिस This गवर्नमेंट? is, it can happen it can happen tomorrow also, it can happen after 2 days. इस वीक में वो लोग विजिट करने की बात कर रहे हैं, इस वीक में विजिट हो जाए। राइट। एंड जैसे हम लोग ने अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर लिया है, आप कोई चेंज देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट मिक्स या फिर कस्टमर सेगमेंट कंसंट्रेशन आगे कुछ होगा? कोई प्रोडक्ट मिक्स हम चेंज करना चाहेंगे कुछ? चेंज नहीं, माने किसी नए प्रोडक्ट में जाने की बात चल रही है, जाएंगे तो हम बताएंगे, बात चल रही है सर। ओके। अच्छा सर, एक और पूछना था, मतलब आपका तो हर बार 50 करोड़ का तो केपेक्स होता ही है, अभी मैक्सिमम केपेक्सेस आपके ऑलमोस्ट कमीशन होने शुरू हो गए। हाँ, तो वो लेकिन सबको पहले रनिंग करना पड़ेगा साहब, वो नया केपेक्स तब तक नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीज रनिंग नहीं कर लें। तो कब वाडा तक प्लांट, एमआईडन का प्लांट भी रन हो जाए, फिर फुल कैपेसिटी का यूज करने लगे, तो फिर वाडा में भी जगह है, वहां भी कैपेक्स कर सकते हैं। गुजरात में भी जगह है मेरे पास, उसमें भी कर सकते हैं। ओके। तो ये नेक्स्ट वो 10-15-20 करोड़ के आसपास भी होगा 2027 में, उससे ज्यादा कैपेक्स नहीं होने वाला। सर सॉरी, लास्ट का पार्ट कितना, कितने कितने करोड़ का आप केपेक्स कर रहे हैं? 15 से 20 करोड़ के आसपास होगा अगले साल में। 15 से 20 करोड़। ओके, गॉट दैट पॉइंट। एंड और आरओई का आपका सर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ आरओई ऑफ द कंपनी? देखिए 2-3 चीज से, ये जो रिसाइकलिंग प्लांट है सर, वो ट्रम्प कार्ड है, थोड़ा रन होने दीजिए, तो अगली बार जब हम आएंगे तो बहुत पिक्चर क्लियर रहेगी, तो उस समय बताऊंगा मैं। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन, सोलर का फुल कैपेसिटी कभी हो जाएगा कमीशन? बात तो ये है कि इस महीने में हो जाना चाहिए। By this month end it should get done, because we have already started with 6 megawatt. So Okay. balance का जो है वो month end तक हो जाएगा। So how much the power cost will we save going forward? 15 करोड़ रुपए का ईयरली सेविंग है सर, 15 करोड़ की ईयरली सेविंग है। This is the estimate. So 3 years में you should retain, you should get back all the investments, right? 4 साल के 4 साल 4 साल में, ब्याज के साथ 4 साल में। नहीं, ब्याज के साथ नहीं, ब्याज एक्स्ट्रा है, लेकिन हाँ 60 करोड़ का जो कैपेक्स किया वो 15 करोड़ के सेविंग से 4 साल में पैसा रिटर्न आ जाता है। 4 साल में रिटर्न आ जाएगा। Great sir, great meeting you. I have some other questions also, but I'll fall back in mail. Thank you so much. Thank you, sir. Next up, we have MD Murtuza. Please go ahead with your question, sir. Good evening, gentlemen. I had a few questions, very quick ones. I had a question regarding the solar commission we just had on 30th October. So we had we had quantified that we will have approximately 15 crores of saving. So if possible, can you quantify it for how much of the savings will we have in Q3? So it will be वो एक महीने का होगा ना साहब, तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपया बढ़ेगा। Okay. नहीं वो नहीं, ईयरली रहेगा ना। हाँ बराबर है, 3-3.5 करोड़ रुपया बढ़ेगा, बनेगा। Okay. This is And estimated figure. It can Yeah. go up also. Sure. And another question I had, like the guidance we had earlier given on the margins. So have we already modeled in these savings of solar costs? Sorry, didn't get your question. Can you please repeat it again? Yeah. We had received the guidance about the margins of about 12% or so. So have we already modeled in the savings of the solar? सोलर एंड रिसाइकलिंग प्लांट भी हमारा फंक्शनल हो जाएगा साहब इस महीने में, वो दोनों से वो उतने मार्जिन आनी चाहिए। So what we have said, we are on track with that. So we are just completed all the expansion what we have done, like recycling has just been commissioned, solar is just been commissioned. So I suggest wait for 1 quarter. Let's see
You will get the result. You will get the your opinion yourself. Okay, sure. And one final question, like as the remaining 9 megawatt of capacity will be commissioned in this end of this month. So are there any incremental cost advantages like more than 15 CR, or is it including both of the plants? Including all Okay. These were my questions. Thank you very much. Thank you. Next question we have from Prateek Delia. Please go ahead with your question. ओके मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन एमएस ड्रम से रिलेटेड था। तो एमएस ड्रम में वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छी दिखी है, बट वो रेवेन्यू में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो कोई डिस्काउंट्स हुए हैं या कोई और रीजन है? Revenue तो आई है, मार्जिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बढ़नी चाहिए। हेलो। हाँ ओके, तो सेकेंड हाफ ग्रोथ तो हुआ है, मार्जिन उतनी नहीं बढ़ी है। ट्राई कर रहे हैं, रेट बढ़ेगा तो हमको लगता है कि कुछ अगले साल अगले महीने क्वार्टर से दिखेगा। कुछ कस्टमर लोगों की रेट वगैरह चेंज हो रही है, ओके, उसमें गॉट इट। अगले क्वार्टर में दिखना बढ़ेगी। ओके, एंड ओवरऑल हम लोग ने मतलब अक्रॉस अदर प्रोडक्ट्स आल्सो कोई डिस्काउंट दिया है क्या टू गेन वॉल्यूम मार्केट शेयर? नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया। मार्केट का रेट के हिसाब से ही माल बेचते, कोई डिस्काउंट देके माल सेल नहीं। ओके, थैंक यू। Request the participants to please raise their hand before asking question. Next question we have from Maitri Shah. Please go ahead. हेलो Yeah. या हमने FY26 के लिए to 700 crores जितना गाइडेंस दिया है, EBITDA margins around 11 to 12%. Next year, what sort of guidance do we have for FY27? Because हमारा वाडा का utilization भी बढ़ जाएगा, and also we'll have the full year effect for the solar and recycling. So what sort of margins also are we guiding for? रिसाइकलिंग प्लांट की जो मार्जिन है वो हमारे को कुछ इस क्वार्टर में काम करेंगे तो पता लगेगा मैडम। तो रिसाइकलिंग प्लांट से क्या अर्निंग होने वाली है उस हिसाब से अगले बार मीटिंग में हम बताएंगे कि क्या प्रॉफिट उसमें और क्या ऐड होगा इसका मार्जिन। सोलर प्लांट का तो मिल रहा है इसमें। अब मैंने रिसाइकलिंग प्लांट का एक्चुअल में कितना बेनिफिट आएगा, कॉस्ट उसमें बेनिफिट जोड़ने जा रहे हैं तो बहुत बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन वो जब चालू हो और उसमें सक्सेस होने के बाद क्या रिटर्न आ रहा है वो बताएंगे, तो एक्चुअल जो बता पाएंगे अगले क्वार्टर में बता पाऊंगा उसके लिए। Okay. So recycling plant छोड़ के what sort of guidance are we giving EBITDA पे और revenue पे next year? रिसाइकलिंग प्लांट का जो मामूली सा जोड़ रखा हूँ उस हिसाब से गाइडेंस दिया हुआ वही है 11-12% का। और revenue 20% growth expect कर सकते हैं next year? 15% की ग्रोथ की बात करता हूँ मैं, 15% के आसपास है ग्रोथ। Okay. Yeah, that is it from my side. Thank you. Thank you. Next question we have from Saket Kapoor. Please go ahead with your question. या नमस्कार साहब। एंड नमस्कार कपूर साहब, बोलिए। सर सर्वप्रथम ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस का 60 करोड़ का, ये टोटली सोलर प्लांट के लिए है हाँ, कि? सोलर का ही है सर, थोड़ा बहुत एमएसडीएम का है, बाकी सोलर का है। ओके सर। और सर हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी में भी काफी जंप हम देख रहे हैं, तो इसे कैसे पढ़ना चाहिए? लॉन्ग टर्म में तो चलिए आपने सोलर के लिए पैसे ड्रॉ किए, शॉर्ट टर्म में भी लेकिन जो मेरा जो शॉर्ट टर्म पैसा था, जो हम मेरा अपना पैसा जो हम यूज कर रहे थे वर्किंग कैपिटल में, जो अभी मैं कैपेक्स किया तो उसमें से वो फंड उसमें गए हैं ना सर लॉन्ग टर्म में, इसलिए वो जंप दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल में यूज हो रहा है। नहीं सर, मेरा ये कहना था कि लॉन्ग टर्म बोरिंग हम देख रहे हैं 74 करोड़, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं 66 करोड़। तो जो जंप हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं करीब 41 करोड़ का 6 महीने में, वो वर्किंग कैपिटल में पैसा गया है ना सर सारा, जो हम कैपेक्स किए हैं सारा, तो उसमें अपने पास से भी फंड गया है ना। जो वर्किंग कैपिटल में पैसा था मेरा, जो सीसी में पैसा रहता था जी, वो भी कैपेक्स में गया है ना।
सर जैसे हम जब अपना पीएनएल देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें पावर एंड फ्यूल का लाइन आइटम नहीं हम दिखाते हैं। ये किसके अंदर सबमर्ज किया हुआ है, और क्या हम आगे से सर अदर एक्सपेंस में दिखाया जाता है सर। अच्छा सर, तो हम लोग क्या एज पर ऑडिट के हिसाब से क्या पावर एंड फ्यूल को अलग दिखा सकते हैं, जिससे हम समझ सकें कि मैं प्रीवियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट से समझ लूंगा, यदि हो सकेगा तो मैं आगे से अलग दिखा दूंगा। जी सर। बाकी सर, जैसे आपने पहले जो एक अनुमान बताया था कि हम इस वर्ष में, इस वित्त वर्ष में 70 करोड़ का एबिटा कर सकते हैं, तो H1 तो सर हमारा क्लोजर टू 27 करोड़ ही रहा है। तो अभी क्या इस अनुमान को मेंटेन करना वाजिब है सर, कि क्या समझ बनती है H2 के लिए? मेरे को लगता है सर ये रिसाइकलिंग प्लांट चालू हो जाएगा तो उससे मार्जिन आनी चाहिए। ओके, तो ये 70 का नंबर अभी अभी के लिए इट होल्ड गुड्स टुडे? हेलो Vijay sir, we can't hear you. सर, आपकी लाइन आवाज नहीं मिल रही। मैम, आई थिंक सो देयर इज सम इंटरनेट इशू। Yeah, we are reaching out to them. ओके मैम, ओके, आई एम देयर, ओके। हाँ Vijay sir, we lost your voice. हाँ कपूर साहब जी सर। सर मैं आ रही ये, है ना बात? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ हाँ सर। सर मैं वही कह रहा था कि अगर 70 का एक अनुमान हमने लगाया था पिछले, जब एजीएम में ही बात हुई थी या उससे पहले भी, उसके हिसाब से सर हम सिर्फ 27 पहुंचे हैं H1 में, तो H2 तो काफी टॉल टास्क हो जाता है इन दैट सेंस। Network. फिर आप, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? मैम आई थिंक सो वी, Yes, sir, we have reached out to them actually. ओके फाइन। Yes. So we are reconnecting to the management. Just give us 2 minutes. यस मैम। आ गए ना? जी सर, आवाज मिल रही सॉरी है? कपूर साहब,
सॉरी साहब, कपूर नहीं साहब, साहब ठीक है साहब, ये नेट टेक्निकल चला गया था। हाँ सर, हाँ सर आप हाँ जो सर, हमारी बात हो रही थी सर अभी एबिटा उसमें के हम ऊपर। बता रहे हैं कि ये अभी आज के डेट में ये 70 करोड़ ज्यादा दिख रहा है। हेलो। जी साहब मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन मेरे को लगता है रिसाइकलिंग प्लांट अभी चालू हो जाए तो वो मैच करना चाहिए, बहुत कुछ नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वाडा और रिसाइकलिंग सोलर, ये तीन चीज अभी इफेक्टिव हो रहा है ना। तो सुन रहे हैं कपूर साहब? जी साहब मैं सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये हाँ तीनों चीजें इम्प्लीमेंट होने से वी विल बी क्लोजर हाँ टू दैट। हाँ, नियर बाई जरूर करना ओके सर। सर करेंटली क्या सर हमारी क्रेडिट रेटिंग हमारी क्या है सर? वी हैव गॉट आवर डेट रेटेड। चाहिए। रेटिंग जो है AAA- है। ओके, और फर्म कौन सी है सर जिनसे कराते हैं क्रेडिट रेटिंग? एक्यूट से, एक्यूट। ओके सर। सर सेकेंड हाफ में हम वॉल्यूम किस कैटेगरी में देख रहे हैं ग्रोथ? और सर अभी जो अक्टूबर महीना गया है हमारा, उसमें बिजनेस में ट्रैक्शन कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने पिछली बार कहा था कि देखिए, अक्टूबर महीना जो होता है ना साहब, उसमें दिवाली दशहरा सभी था, तो वो तो नॉर्मल महीना ही था, जैसा पिछले महीना चल रहा है सेल वैसी थी। अच्छा, नवंबर से जरूर सही हो रहा है। ओके। 5-6 दिन की छुट्टी आती है ना, उसमें दशहरा और दिवाली की आई थी। this year है ना, दशहरा एंड दिवाली was same month, यस सर। हाँ, तो इसलिए छुट्टियां ज्यादा आ गई। वो, लेकिन इस महीने में लग रहा है और कुछ तो टेरिफ का भी चक्कर चल रहा था, वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, अभी यूएस वगैरह माल जाना शुरू हुआ है। ओके सर, तो उसमें सर मार्जिन पे कंप्रेशन है हमारा कि कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं ये टैरिफ का इशू को? नहीं, हमारे को कोई नहीं, Margin- सामने वाले जो केमिकल वाले हैं वो अपना निगोशिएट कर रहे हैं उनसे, हमारे पास तो इतनी 25-50% मार्जिन का धंधा है नहीं कि हम कुछ जी कंपनसेट कर सके उनसे। जी सर जी। ठीक ठीक है सर। बाकी सर एक अनुरोध रहेगा कि अगर हम अपने कॉल को थोड़ा सा और 5 बजे के आसपास रखें तो सर थोड़ा और समय मिल जाता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो काफ़ी इलेबोरेट है सर, अब की बार काफ़ी काम किया है आप लोगों ने इस पर, बट क्योंकि मार्केट आवर्स का तुरंत समय नहीं हो पा रहा है पूरा प्रेजेंटेशन के गो थ्रू करने का, तो अगर तो आप फिर से लोग। आप फोन कर सकते हैं, कुछ डाउट लगे तो मेरे से बात कर अच्छा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। अच्छा सर, ठीक ठीक है साहब, धन्यवाद। Thank you. Next question we have from Athar Said. Please go ahead with your question. हेलो। Athar, I think you're on mute. हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ मेरा हाँ सिर्फ सर। 2 क्वेश्चन था। एक तो ये क्वेश्चन था, लाइक लास्ट टाइम हम लोग लोअर परेल में आई थिंक मिले थे गो इंडिया के थ्रू, तो वहाँ पे आपने सर ने कहा था कि हम लोग का ये क्वार्टर में ही सोलर से अराउंड 15 करोड़ सेव होगा, बट आप अभी बोल रहे हो नेक्स्ट क्वार्टर या अभी और 2-3 महीना जाएगा, तो इसमें ये डिले। सोलर जो सर, हम दूसरे पर डिपेंड थे, बारिश के समय वो सोलर वाला बोला था चालू हो जाएगा पिछले क्वार्टर में, लेकिन सोलर इस चालू हुआ है, लेकिन उसमें जो सोलर जिससे मैंने लिया है उसको भी कंपलसेट करने की बात है, वो भी क्या कंपलसेट कर रहा है हम बताएंगे वो फिगर, वो जो उसने लेट किया है उसका उनको उन्होंने कंपलसेशन भी देंगे वो लोग, लेकिन सोलर डिले हुआ है तो डिले हुआ है, उसका कोई उपाय नहीं है सर, कुछ गवर्नमेंट नहीं तो लाइजिंग भी होती है उसने जो ये बोला था सोलर कि डिले सोलर हम चालू हो लोग का। जाएगा। हाँ, ओके। तो हाँ उस क्या बोल हिसाब रहे पर मैं बोल रहा था, वो जो बोला था सोलर कंपनी जिनको मैंने दिया था, उन्होंने जो बोला था उसी बेसिस पे मैं बोल रहा था कि सोलर प्रोजेक्ट मेरा 3 महीना डिले हो गया। हो? दूसरा क्वेश्चन तो क्या था सर मतलब ये आपका? सप्लायर साइड से, मतलब जो हमारे डीलर थे उनके हाँ साइड से डिले हो गया। ओके। हाँ हाँ, वही हमने पेमेंट देने में या मेरे कारण कोई लेट हुआ ऐसा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग का मतलब 15 करोड़ तक के सेविंग्स हो जाएगी, करोड़ करेक्ट? ईयरली 15 करोड़ की सेविंग है, ईयरली सोलर से 15 करोड़ की सेविंग है, तो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? स्टार्ट हो जाएगा जी सर। एंड सर हम लोग का क्रेडिट कितने दिन का रहता है आमतौर से कस्टमर्स को? 90 डेज के आसपास का रहता है सर, लगभग 62-63 दिन में पूरा पैसा, ऐसे सब ओवरऑल मिलाएंगे तो 75 डेज में रिटर्न हो जाए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, यही था क्वेश्चन। Thank you, Athar. Next question we have from Pratik Delia.
Please go ahead with your question. थैंक यू सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है प्रदीप जी, हाँ बोलिए। सर, आपने अपने प्रेजेंटेशन में वो मार्जिन एक्सपेंशन पे जो बताया है, तो वो ऑटोमेशन वाले पे आप थोड़ा कलर बता सकते हैं क्या, कि कितना इम्प्लीमेंट हो गया है और आगे क्या क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है? वो टोटल हो गया सर इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन में। Automation पूरा implement हो गया। पूरा We are implement हो focusing गया। on marketing right now to get Right. it to get more and more customers. ऑटोमेशन पूरा हो गया सर। ओके, गॉट इट। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन, अभी जो केपेक्स अपना पूरा हो गया है और नेक्स्ट ईयर से केपेक्स कम होगा, तो डेट रीपेमेंट पे कुछ प्लान बता सकते हैं कि इज इट टू अर्ली टू टॉक? नहीं सर, करना चालू भी कर देंगे अभी से। जो भी टर्म लोन लिया है उसका अभी अगले क्वार्टर शेड्यूल भी आने लगेगा, पेमेंट जाएगा वो। ओके, तो एनी प्लान फॉर 5 साल के एक्सीलरेटेड? टेन्योर पे लिया हुआ है और ओके, रीपेमेंट चालू भी हो जाएगा अगले क्वार्टर। और अच्छा, पहले यदि कैश जनरेट हो गई कंपनी में तो पहले भी दे सकते हैं। प्री पेमेंट चार्ज भी नहीं है कि कोई हम अपने को प्री पेमेंट देना है, ऐसा कुछ नहीं। To get prepay the debt as soon as possible so that we Got get maximum return for the stakeholder. फेयर एनफ, गॉट इट, ओके, थैंक यू, दैट्स इट। Thank you. Thank you, Prateek. Request all the participants to please raise their hand if they have any question. Next question we have from Saket Kapoor. Please go ahead with your question, sir. सर जैसे अभी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का जो पॉइंट है नोट नंबर 19 पेज नंबर 19 में, सर इसमें आपने मार्जिन एक्सपेंशन लिखा है 800 to 900 बिप्स, तो इसका मतलब सर मतलब 8 से 9% का फर्क पड़ेगा टोटल मैन कॉस्ट का सर, इन टर्म्स ऑफ द मैन पावर कॉस्ट? देखते हैं। विजय जी, स्टील ड्रम के बारे में वो पूछ रहे हैं जो अपना ऑटोमेशन किया है। अच्छा। पेज नंबर 19। हाँ। हाँ सही है सर, हाँ बताइए। सर इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट नंबर पे कितना फर्क पड़ेगा इसका सालाना? ज्यादा मेरे को टोटल फिगर तो नहीं निकाल के रखा हूँ सर, बताऊं आपको। थोड़ा सा टाइम दीजिए तो मैं निकाल के एक्यूरेट बता दूंगा। But definitely it will increase. हाँ, कितना होगा एक्यूरेट फिगर जरा कैलकुलेट करके Because बताना what will पड़ेगा। happen now, automation we have already have a capacity of around 75 to 80,000. So जैसे जैसे मेरी capacity बढ़ते जाएगी with same cost of production, only the manpower will remain same. Only the variables will increase. So that's the idea of making it automation, that without the labor cost we will have a same capacity. So now we are focusing, हम लोग अब फोकस कर रहे हैं मार्केटिंग में ज्यादा कि अब इसको कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए उसका, जो कैपेसिटी हमने लगाई है। और ये सर सिर्फ एमएस ड्रम के लिए ही एप्लीकेबल है जैसे? हेलो, सुन रहे साकेत साहब? हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। जी सर मैं सुन रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एमएस ड्रम के लिए एप्लीकेबल है? नेट का तुम्हारा बड़ा हेलो, काम सही नहीं है तुम्हारा यार, कोई भी काम को इस पर। हेलो जी सर मैं तो सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। मैम यू कैन हियर मी? Yeah, we can hear you, sir. We are reconnecting to the management. अच्छा जी। नहीं छोड़ दीजिए ना, फोन पे कर लेते हैं। हेलो कपूर साहब। हाँ सर मैं लाइन पर हूँ साहब। विजय जी, आपका म्यूट हो गया, जरा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आ रही है कब? जी सर आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ हाँ सर मैं कह रहा था कि ये एमएस ड्रम से रिलेटेड ही सिर्फ एफिशिएंसी है, दैट इज पर्टेनिंग ओनली टू द एमएस ड्रम यूनिट एज अरोड़ा जी जैसे बता रहे थे। जी 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 सर। ओके। एंड सर आपने जो आपके वैल्यू एडेड बिजनेस है आईबीसी बिजनेस, उसमें कैसा आप ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं? और सर जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी के हिसाब से आपकी यूटिलाइजेशन लेवल जो 66% थी H1 में, ये आप H2 एग्जिट कैसा देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स गोइंग अहेड? आईबीसी का ग्रोथ बराबर
विजय जी फिर म्यूट हो गए, म्यूट हो फिर गए, आपकी आवाज चली गई साहब। म्यूट हो गए, जरा अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर, वो नहीं सुन, मैंने हाँ हाँ, उन्होंने एक ध्यान मिनट, नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं एक दिया। मिनट Can you unmute it from your side? विजय जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। जोड़े थे ना। हेलो, हाँ अब भाई आवाज आ रही है? आ रही है ना हाँ आ कपूर रही है, आ रही है। साहब? सुना ना कपूर साहब? नहीं साहब, कुछ बात आपका उत्तर नहीं समझ पाए थे सर, आपको नहीं, मैं दोबारा क्या है कि जिस टाइप की ग्रोथ आईबीसी में मिलनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट आईबीसी मैक्सिमम एक्सपोर्ट में जाती है, तो ये जो टेरिफ के चक्कर कारण जो ग्रोथ आना चाहिए था आईबीसी में, वैसी ग्रोथ नहीं है अभी। लेकिन जी फिर सर। भी 10% के आसपास का आईबीसी में ग्रोथ चल रहा है, हो रहा है। 10% के आसपास की आईबीसी सेल ग्रोथ है। करेक्ट। हेलो। हाँ सर, ठीक है सर। और H2 सर, हम क्या एग्जिट समझ सकते हैं हमारे यूटिलाइजेशन लेवल्स के लिए? अभी H1 में हमने 66% में क्लोज किया है। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट H2 टू क्लोज? तो 68 या 70 के बीच में दिख रहा है सर। ओके सर। एंड सर, मार्जिन वाइज तो हमारा आईबीसी बिजनेस ही हायर मार्जिन कमांड करता है, एंड देन हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। and then comes the polymer drum and then the MS in that order. ये सही, यही है, यही है। ठीक है साहब, थैंक यू। Request the participants to please raise their hand before asking the question. ये चालू कर देना होता है तो, हाँ? ये चालू होगा तो उसको बंद कर दो। इंटरनेट प्रॉब्लम है, उसमें मोबाइल डाटा चलता है। अच्छा, Okay, so I think we are done with our Q&A session. Dipesh, do you have any question? Yeah, just one question. विजय सर, जो मॉडर्नाइजेशन आपने कहा है, जिससे 8 to 9% का आपका एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ आप वाड़ा में ही करने वाले हैं या अक्रॉस जितने भी हमारी प्रोडक्शन लाइन से सब में होने वाला है ये? नहीं, केवल वो एमएस ड्रम की बात हो रही है सर। एमएस ड्रम जो वाडा में लग रहा है वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। सो ओनली इन वाड़ा, राइट? वाडा में उसके बाद बहुत 2 यूनिट हमारे, एक वाडा का जो चालू होने वाला है इसमें, वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड ही है, ऑटोमेशन में ही चलेगा। सर, वाड़ा और एक और प्लांट आपने बोला कि सिर्फ वो वाड़ा? भरूच के भरूच एंड वाड़ा। Earlier it was a semi-automatic, so now it has been converted into fully automated. And plus WADA from day one only for MS drum, we are installing the same fully automated plant. Okay, so you have seen this in Bharuch that 8 to 9% of higher margin which you're It will getting. start as ट्रायल साहब, जैसे जंग से सेल बढ़ेगी ना, अभी जो 40,000 ड्रम है वो वही 80,000 पे जाएंगे तो वो मार्जिन दिखने लगेगी। Okay, फोकस ये है कि अब Oh. मार्केटिंग कैपेसिटी अब बढ़ाएं उसको। okay. सर, एक और क्वेश्चन है कि कस्टमर से डिमांड अभी कैसा है? डिमांड अच्छी है सर, जो बन रहा है वो जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, और एक्सपोर्ट जितने अपनी फर्म्स है, जो एक्सपोर्ट फर्म्स है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, उनकी भी डिमांड रिवाइव हो रही है या अभी भी थोड़ा स्लो है? जो कुछ हाँ, वो भी रिवाइव हो रही है। जो यूएस को भी दे रहे थे बीच में 1-2 महीने नहीं गया, अभी वो भी चालू हो गया है, वो भी जा रहा है ना वो? ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। Next question we have from Ganesh Nagarsekar. Please go ahead with your question. हेलो सर। सर, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा हमारा मीडियम टर्म जो ट्रैजेक्टरी है उसके ऊपर था। तो अभी जैसे अपना कैपेसिटी काफी बन चुका है और मान लीजिए कि मतलब अगले साल आपने गाइड किया है कि 15% हम ग्रो कर जाएंगे, तो दैट शुड टेक अस टू 75% प्लस यूटिलाइजेशन। तो उसमें हमारा अभी एग्जिस्टिंग ग्रोथ सही आ जाएगा, बट उसके आगे का हम ब्रॉडली क्या सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्या आप नए प्रोडक्ट्स में ब्रांच आउट करने का सोच रहे हैं या फिर
किसी और लोकेशन पे ग्रो करके वैसे ग्रो करने का सोच रहे हैं, या मतलब ब्रॉडली जो अभी जो मैंने जहाँ जहाँ लोकेशन अपना है वहां पर भी 15% की ग्रोथ मिल जाएगी। एज इट इज जो हमारा जो भी प्लांट अभी सेट हुए हैं उसमें केवल हम मशीनरी ऐड करेंगे हाँ और जी। जो हमारी एक्स्ट्रा कैपेसिटी को उसको यूज करेंगे, उससे हमको ईयर टू ईयर 15% का ग्रोथ उसमें ही मिल जाएगा। नए लोकेशन में अभी नहीं सोच रहे हैं कुछ, जो हम जहाँ जहाँ जैसे वाड़ा में लगाए तो वो जगह बड़ी है, वहाँ मशीन ऐड करेंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा लेंगे। That is why we have said it's 15-20 crore capex. गुजरात एंड महाराष्ट्र बहुत दोनों जगह अपने पास जगह है, दोनों जगह में इसी में जगह में मशीन ऐड करेंगे और कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, और जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है उसको यूज करेंगे। So infrastructure wise, we are ready. I just need to invest in machinery going forward for the next financial year. समझा सर। सर, और आपने बोला था कि आप एक नए प्रोडक्ट लाइन में भी लॉन्च करने का कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो मतलब ब्रॉडली इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में ही है या किस डायरेक्शन में ग्रो करने का सोच रहे हैं? पैकेजिंग में ही है। अच्छा, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में ही कोई दूसरा प्रोडक्ट में ये करने का सोच रहा है। But it will definitely announce soon. But let's keep the फाइनल हो जाए उसके बाद बताऊंगा सर। अच्छा सर, बट मतलब ये हम मान सकते हैं कि अगले 1-2 क्वार्टर में अनाउंसमेंट आने का उसका चांस रहेगा? हाँ, आ जाएगा सर, आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। काफी अच्छा एग्जीक्यूशन रहा है एंड होप करते हैं ऐसे ही आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। Thanks everyone for your participation. I'll request Jay sir to kindly deliver your closing remarks before we end the call. So to all the friends, thanks for joining and thanks for your patience. You have been very kind to be supportive enough. And now I just want to say that with the journey going forward, trust us, keep trusting us. We have been doing fine and we have added a lot of capacity. It's time to deliver. So finger crossed, from next quarter onwards, you should see all the results coming up. Thanks for joining. Thanks everyone.